Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, we are studying I/O management, a very important component of the operating system, and we are discussing the principles of I/O hardware. The topic that I was discussing in the last lecture, I passed through it a bit quickly, so I've decided to repeat it for your convenience. So let's quickly revise that last topic that we discussed, and then I'll start the next lesson. Okay, we were talking about the PC interrupt structure. Okay, interrupt structures, I informed you and I explained it to you that in the first lecture that all the I/O devices could directly be connected to the system bus. This is a system bus. But if we install the interrupt controller, then instead the devices are connected directly to the system bus and interrupting directly to the CPU, they can be connected with the interrupt controller. Then interrupt controller is an intelligent controller that maintains the record that which device has sent the interrupt, which device has asserted a signal, meaning that requires the attention of the CPU. So the connection between the devices and the interrupt controller use interrupt lines, the bus rather than the dedicated wires. Okay, so these are also the different buses through which they are connected with the interrupt controller, and they assert the signal to this interrupt controller. What this interrupt controller do, it just carries out certain intelligent tasks that identifying the which device has requested the attention of the CPU, then what type of service the device has requested, what kind of information of the service routine can be provided to the CPU, means that it has the information regarding the interrupt service mechanism. So it calculates that the interrupt number and the priority is also known to this interrupt controller, and put that information while interrupting the CPU. CPU once get the interrupt along with the information, then just required to attend that, means जो interrupt service routine की detail provide की है interrupt controller ने, based upon that information provide the service. So let's go slightly in detail that each device asserts a signal on a bus assigned until attended by the interrupt controller. क्या मतलब कि वो सिग्नल को assert करने के बाद बार बार उसको repeat करता रहेगा unless until the interrupt controller or eventually the CPU's attention is attained. Then the controller detects and distinguishes the interrupt signal by the device. देखता है कि कौन सी device से interrupt signal जो है वो receive हुआ है. If no other interrupt is pending, it immediately responds that. What does it mean? It means that each device has been assigned a certain priority, और उसकी priority की basis के ऊपर it takes, if the interrupt controller is available and doing nothing and no other interrupt is pending, then obviously whosoever is the device sending the interrupt gets the response very quickly. Otherwise, it has got the two options: either put that interrupt into the queue or take the higher priority interrupt into service, or what it can do, it can simply ignore that. So the controller puts number on address line telling CPU which device wants the attention. सबसे पहले तो ये device को identify करती है, and then the interrupt vector table, it points the interrupt service के कौन सी सर्विस चाहिए, रीडिंग की सर्विस चाहिए, राइटिंग की सर्विस चाहिए, या
کوئی میسج پاس آن کرنا ہے آپ نے ڈیوائس کو آپ نے آن یا آف کرنے کی انفارمیشن ہے, بٹ یوزلی دس ٹائپ آف سروس از کیریڈ آؤٹ بائی دی controller itself. So whatever the CPU has to do with the IO devices is usually either the input or the output. So it precisely point out the address of the particular service that is required to be invoked and initiated so that that interrupt service jo hai could provide the service to the that particular device. Okay. Number on address line acts as an index to the interrupt ویکٹر. تو وہ جو انفارمیشن ہے انٹرپٹ نمبر ہے اور اس انٹرپٹ نمبر کے بعد ریڈ یا رائٹ کی انفارمیشن ہے, اس کی بیسس کے اوپر پریسائزلی جو ایڈریس ہے دیٹ بیکمز دی ایڈریس آف دی انٹرپٹ سروس روٹین. So interrupt vector contains the program count, PC means program counter, which points to the start of the service routine. Means کہ جب وہ interrupt service routine کو address کرتے ہیں تو obviously it is the entry point or the address of the first instruction of the interrupt service routine to be executed, or address of the first instruction which needs to be the execution is pointed out by the program counter. Then interrupt processing, we have been discussing it in detail, but here we will be talking about some other aspects. Once the interrupt service routine acknowledge the interrupt, okay, means ke says that okay I am available, or acknowledge means sends the signal that the attention has been achieved of the CPU. It saves the information of the interrupted program. Obviously the CPU jo hai must have been doing something else, so whatever the program is being executed by the CPU, that information requires to be saved. Now the big question is where to save the information. اس انفارمیشن کو ہم ایسی جگہ پر سیو کرنا چاہتے ہیں جہاں سے کہ ہم اس کو کنوینئنٹلی ریٹریو کر سکیں اور ہمارے پاس کوئی ایڈیشنل اوور ہیڈ بھی نہ ہو. دیر آر ٹو آپشنس, either we save it into the user space, means جو پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اسی پروسیس کے ایڈریس اسپیس کے اندر اس کو سیو کیا جائے, اس کے بھی اس کا جو پروسیس کا جو اسٹیک ہے اوکے اس کو یوز کیا جائے, اور دیٹ اسٹیک جو ہے must have been pointing out to the stack pointer جو ہے must have been pointing out to the stack area. تو ایک تو آپشن یہ ہے کہ جناب آپ اس یوزر پروسیس کے اسٹیک کو یوز کرتے ہوئے اس کے اسٹیک پوائنٹر کو یوز کرتے ہوئے انفارمیشن کو سیو کریں, بیکاز انفارمیشن belongs to that particular process. And the second option is we use the kernel stack. Both have some difficulties, some problems. And what are those problems? First of all, let's talk about the user process stack. User process stack میں کیا difficulty ہو سکتی ہے کہ the stack pointer user might not be intelligent enough, or might have been using accidentally or unintentionally using the stack pointer for passing out certain other information. So the stack pointer might have not the exact address of the stack created in the user process. So it could be a garbage, or it could be the address which is not the exact address of that particular stack. So what will happen if you just put it over there? It will crash the process, اور یہ سارے کا سارا آپ کا سسٹم جو ہے will be crashed. The second possibility is that کہ stack pointer جو ہے that if might be pointing out to certain area that is at the boundary of the page. یا تو پیج کی باؤنڈری کے اوپر, یا اگر سیگمنٹس یوز کر رہے ہیں تو اٹ کوڈ بی ایٹ دا باؤنڈری آف دی سیگمنٹ. تو دیر از اے چانس کہ آپ کا پیج فالٹ اکر ہو جائے یا سیگمنٹ فالٹ اکر ہو جائے. سو وٹ ول ہیپن کہ آپ کا ایک فالٹ اکر ہوا ہے, انٹرپٹ اکر ہوا ہے. انٹرپٹ جو ہے وہ جب پیج فالٹ ہوگا تو دیٹ ول کاز another interrupt, means interrupt causing interrupt. So that is really difficult to handle. ابھی تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب انٹرپٹ اکر ہو تو انفارمیشن کو کہاں سیو کریں. چاہے جائے کہ وی آر ناؤ ان اے سچویشن ویئر ایک انٹرپٹ کا ڈیٹا ابھی سیو کرنے جا رہے تھے تو ایک اور انٹرپٹ اکر ہو گیا.
है ना एक complicated situation. So that is related if you are trying to save that in the user space. But instead if we want to save it into the kernel stack, तो कर्नल स्टैक तो क्योंकि being controlled by the visor part of the software which is the operating system or which is the kernel itself, so it you have a legal stack pointer. But jumping to the kernel area, jumping into the system area, you know that کہ ایک trap occur ہوتا ہے جہاں سے کہ user سے آپ kernel space کے اندر jump in کرتے ہیں. جب آپ کرنل اسپیس کے اندر جمپ ان کرتے ہیں تو وٹ ایور انفارمیشن از اویلیبل کہاں پر MMU میموری مینجمنٹ یونٹ میں, اور میموری مینجمنٹ یونٹ میں پریسائزلی کون سا ایریا, TLB, اوکے, دی لوکاسائٹ بفر, اوکے, ٹرانسلیشن لوکاسائٹ بفر TLB جو ہے ریکوائرڈ ٹو بی فلشڈ, کیونکہ TLB تو ایک امیجیٹ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا. اب اگر آپ نے انوائرمنٹ چینج کر دی تو وٹ ایور از دیئر ان دا TLB یو ول ہیو ٹو فلش دیٹ, کیونکہ وہ اب آپ کے انٹرپٹ سروس روٹین سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سملرلی جو کیش کون سی اب میں بات کر رہا ہوں, دی ایریا ود ان دی اسٹوریج ایریا, دا بفرڈ ایریا ود ان دی CPU, وہ کیش بھی ریلیونٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ تو اس پروسیس کی کیش تھی جو کہ لاسٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا. تو اب آپ کو اس کو سیو بھی کرنا ہے یا آپ نے اس کو فلش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ری لوڈ کرنا ہے when that process will resume. So that is again a time consuming job. So ہم نے کہا تھا نا انٹرپٹ جو ہے اور بیسیکلی ایک unpleasant situation ہے. ریئل لائف میں بھی اگر آپ دیکھیں if you are doing some serious job اور آپ کا ایک انٹرپٹ اکر ہوتا ہے, کیسے انٹرپٹ ہوتا ہے, کال بیل بج جاتی ہے یا ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے while you are studying and while you are concentrating to one particular task. So what you are required to do, whatever you are doing, اگر آپ ایک ریڈنگ کر رہے ہیں تو جس پیج کے اوپر آپ نے ریڈنگ کر رہے ہیں آپ کو اس پیج کے اوپر نشان لگانا ہوتا ہے, کتاب کو بند کرنا ہوتا ہے, پراپر جگہ کے اوپر کتاب کو آپ رکھتے ہیں کہ unintentionally وہ might not be exposed to the children اور کوئی پریشانی نہ ہو جائے. سو یہی ساری سچویشن جو ہے وہ انٹرپٹ کی CPU کے اور سسٹم کے حوالے سے بھی ہے کہ it is an unpleasant situation. So then where to save the information? There are two again options جو ہم نے بات کی کہ انٹرپٹ کرتے ہوئے جو آپ کی انسٹرکشن جو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں کیا ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. سو اس کے جواب میں بھی there are two options. ایک ہے the precise interrupt, that is an ideal situation, کہ آپ کا جو انٹرپٹ ہے وہ ایک بڑا precise handling ہوئی ہے. precise handling کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا ایک PC جو ہے وہ سیکوینس کے اندر انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, CPU جو ہے سیکوینس کے اندر انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اس کے اوپر پریسائزلی پتا ہوتا ہے کہ which instruction is going to be executed next, اور which instruction is going to be executed next is pointed out by the program counter. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروگرام کاؤنٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ اگلی انسٹرکشن آپ نے کون سی ایگزیکیوٹ کرنی ہے, تو آپ نے اس کو پروگرام کاؤنٹر کو سیو کرنا ہوتا ہے, اور دیٹ پروگرام کاؤنٹر کنٹینز دی precise instruction, next instruction that has to be executed. So all the instruction up to that point means جہاں پہ پروگرام کاؤنٹر سے پہلے تک جو ہے وہ pointed out by the PC have fully executed, یعنی کہ پروگرام کاؤنٹر جس انسٹرکشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس سے پہلے کی تمام انسٹرکشنز جو ہیں are fully executed. The instruction up to that program counters are precisely known کہ یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو گئی ہیں, اینڈ جو انسٹرکشنز پروگرام کاؤنٹر سے شروع ہو کر اگلی انسٹرکشنز ہیں those instructions have not been executed. So this is an ideal scenario جو اس کو کہ آپ بڑی precisely save کر سکتے ہیں. So execution state of the instruction pointed to by the program counter is known, اور یہ کہلاتا ہے کہ the precise interrupt handling procedure. Imprecise interrupts بھی ہوتے ہیں کیا؟ Yes. Can we save the program counter and PSW? PSW کیا ہوتا ہے بھائی? Do you remember that?
process status word. It is a register that contains some hardware information. बड़ी important information होती है जो उस particular process के साथ होती है. Program counter और PSW तो normally hardware ही save कर देता है, and we can save that. लेकिन क्या हम उसको accurately save कर सकते हैं? Consider a situation where you are using the pipeline processing या super scaling. अब आप पूछेंगे पाइपलाइन प्रोसेसिंग या सुपर स्केलिंग क्या है? याद है आपको हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में पाइपलाइन प्रोसेसिंग की भी बात की थी और सुपर स्केलिंग की भी बात की थी. क्विकली पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होती है कि अगर एक इंस्ट्रक्शंस आपकी 5 मशीन साइकिल्स की इंस्ट्रक्शन है तो ये नहीं होता कि 5 मशीन साइकिल के बाद नई इंस्ट्रक्शन लोड हो जाए. वो याद है आपको सारे स्टेप्स जो है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ठीक है ना. तो क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है दूसरी इंस्ट्रक्शन को पुश कर रही होती है फॉर द एग्जीक्यूशन, और इस आर्किटेक्ट को हम कहते हैं पाइपलाइन आर्किटेक्चर. ठीक है, ताकि आप जो पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के अंदर साइमल्टेनियसली लोड हो रही होती हैं, तो लिहाजा एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन नहीं लोड हो रही होती बल्कि आपके पास सीपीयू के अंदर जो है जो उसके रजिस्टर्स होते हैं उसमें डिपेंडिंग के आपका कितने मशीन साइकिल की इंस्ट्रक्शंस है पाइपलाइन में 1 2 3 4 5 जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी हो सकती है. सुपर स्केलर क्या है? सुपर स्केलर में तो बिल्कुल ही पैरेलल प्रोसेसिंग है और उसके अंदर एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि इंस्ट्रक्शंस आर डिकम्पोज एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर. याद है ना ये टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था? जरूरी नहीं है कि उस सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हो. ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ा था. अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या जो क्वेश्चन है कि कैन वी सेव द प्रोग्राम काउंटर इन PSW, तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में इट्स वेरी ट्रिकी एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड और उसके लिए फिर आपको यू रिक्वायर सम स्पेशल मैकेनिज्म. सो दिस इज एन एग्जांपल. इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ए जो है इज शोइंग बेसिकली जी यहां से यहां तक ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं. अगर आप देखें फुली एग्जीक्यूटेड, यहां से प्रोग्राम काउंटर इज मूविंग अप तो इंस्ट्रक्शंस आर फुली एग्जीक्यूटेड. दिस इज द प्रिसाइज लोकेशन और ये जो प्रिसाइज लोकेशन बता रही है कि जनाब यहां से ऑनवर्ड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है. तो दिस इज अ सिनेरियो वेयर यू कैन प्रिसाइजली सेव द स्टेटस ऑफ द इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं प्रिसाइज इंटरप्ट. ये है आपका इम्प्रिसाइज इंटरप्ट. इसके अंदर सिचुएशन क्या है कि अगर तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है तो जो सबसे टॉप पे होगी वो माइट बी एग्जीक्यूटेड 80%, उससे पीछे 60%, एक वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन की परसेंटेज ऑफ एग्जीक्यूशन आएगी. लेकिन अगर ये सुपर स्केलर है देन द इंस्ट्रक्शन माइट बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर. तो आप देखें कि ये इंस्ट्रक्शन तो अभी सिर्फ 20% एग्जीक्यूट हुई है और प्रोग्राम काउंटर यहीं से जा रहा भी ऊपर. देखेंगे यहां से आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम काउंटर ऊपर मूव कर रहा है. ठीक है ना. तो इस इंस्ट्रक्शन को ज्यादा एग्जीक्यूट होना चाहिए था लेकिन इससे ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन 316 और 320 जो है वो 35 और 40% एग्जीक्यूट हो गई. तो ये सिनेरियो कौन सा है? ये सिनेरियो है सुपर स्केलर का सिनेरियो. सो इफ दिस इज द सिचुएशन देन दिस इज कॉल्ड एन इम्प्रिसाइज इंटरप्ट. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सेव ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन अब सेव नहीं करनी है. अब आपने अब जितनी इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू के अंदर आ गई हैं, ना सिर्फ ये कि सारी इंस्ट्रक्शन सेव करनी है बट यू आर रिक्वायर्ड के हर इंस्ट्रक्शन का प्रिसाइज स्टेटस भी सेव किया जाए एंड दैट इज रियली अ चैलेंजिंग जॉब. सो वी do that with the help of great difficulty. Either we use a complicated hardware जैसा कि Pentium यूज करता है, logic to restart after the interrupt. So either you have to now provide a complicated hardware, so that will cost you in terms of the hardware and in terms of money, or you have to have a very complicated processing in operating system. या तो अब भाई सॉफ्टवेयर ने इसको सॉल्व करना है या हार्डवेयर ने सॉल्व करना है, दोनों सूरतों में you have to pay the price also.
ओके तो जहां हम एडवांटेज लेते हैं सुपर स्केलिंग का, पाइपलाइन प्रोसेसिंग का, और हम स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं, वहां पर इंटरप्ट को हैंडलिंग के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ऑर्डर टू सेव द करंट प्रोसेस, सो डैट कि जब वो प्रोसेस रिज्यूम करे शुड स्टार्ट नॉट ओनली स्टार्ट प्रिसाइजली फ्रॉम दैट पॉइंट, और बल्कि एक्यूरेटली, अगर वो प्रिसाइजली स्टार्ट नहीं करेगा तो एक्यूरेटली स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब वो कैसे करता है, हम इसको कंसिडर इस लेसन के अंदर, इस कोर्स के अंदर हम इसको इससे ज्यादा फर्दर डिटेल में हम नहीं जाते, बस हम ये अज्यूम करते हैं कि इसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर चाहिए होगा, ठीक है। अगर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और जिसमें या हम आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अगर कोर्स पढ़ें, तो उसमें फिर ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि वो उसको कैसे हैंडल करता है और कैसे सेव करता है, ठीक है भाई। सो स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक था जो कि मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है लास्ट लेसन में कराया था, और आज मैंने उसको जरा डिटेल के साथ दोबारा रिपीट किया है फॉर योर कन्वीनियंस, और ताकि आपको परेशानी ना हो। So we have finished the principles of I/O hardware. Let's start the discussion, talk about the principles of I/O software. Okay, principles of I/O software. First of all, talk about the goals. Goals क्या हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इट शुड बी डिवाइस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म नेमिंग टू डिवाइसेस होनी चाहिए, एरर हैंडलिंग होनी चाहिए, एंड देयर आर फ्यू मोर। लेकिन पहले चलें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको जो टॉपिक आता जा रहा है उसको डिस्कस करते जाते हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंस, we do not have to specify the devices when assessing the device. For example, if you want to read the file, अगर आपने रीड करनी है उस फाइल को और उसको डेटा को कॉपी करना है, तो आपको डिवाइस को मेंशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सिंपली जनाब फाइल सिस्टम के अंदर से क्लिक करें, विंडोज आपने खोली हुई है, फाइल को एक तरफ से क्लिक करें और एक तरफ ड्रैग करते हुए दूसरी डिवाइस के ऊपर ले जाएं, तो डिवाइस को जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। लिहाजा आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हार्ड डिस्क से सीडी रोम पे जा रहे हैं, या सीडी रोम से हार्ड डिस्क पे आ रहे हैं, या सीडी रोम से यूएसबी पे जा रहे हैं, या यूएसबी से हार्ड डिस्क पे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स सीडी रोम पे राइट करने के लिए आपको स्पेशल टूल्स की जरूरत पेश आती है। सो डिवाइस इंडिपेंडेंट मींस कि आपका जो टॉप लेवल का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका गोल ये होना चाहिए कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करे उसमें तमाम डिवाइसेस को हाइड करे और आपको कहे कि सिर्फ आप फाइल्स के साथ प्ले करें, फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर आप लेके जाएं, चाहे वो विद इन द डिवाइस हो चाहे वो अक्रॉस द डिवाइस हो। इसको हम कहते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म नेमिंग। अब जो नाम रखने अपने डिवाइस का उसका भी एक यूनिफॉर्म वे होना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी कि आपको हर डिवाइस के लिए एक डिफरेंट नेमिंग या डिफरेंट नॉमेनक्लेचर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। सो नेम शुड बी डिपेंडेंट ऑन डिवाइस टाइप, name of device should not be dependent on device type, and name of the device, directory and file should be the same. जिस तरह हम फाइल सिस्टम के अंदर फाइल्स को मेंशन करते हैं, डायरेक्टरी को मेंशन करते हैं, इसी तरह डिवाइस को मेंशन करना चाहिए। और हमने देखा कि यूनिक्स एनवायरनमेंट के अंदर रूट फाइल सिस्टम में, याद है ना आपको, हमने जब पढ़ा था, तो ये आपका रूट है /user/ast/backup. So in Unix a USB stick can be mounted on the top of the directory. आप यहाँ पर USB stick को माउंट करवें, ओके, और बैकअप डिवाइस के तौर पर, या इस जगह पे AST के ऊपर आपने USB स्टिक को माउंट कर दिया। तो अब USB स्टिक आपने मेंशन नहीं किया दिस इज अ USB स्टिक, आपने कहा कि माउंट बैकअप, ठीक है, और ये अब आपकी USB का नाम आपने बैकअप रखा हुआ है और आपने इसको माउंट कर दिया AST के अंदर, और यहां से फिर अब आप इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट है विच इज फॉर एग्जांपल मंडे, और आप ये डेटा जो है मंडे का इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। सो आपने कोई स्पेशल नेमिंग, कोई नॉमेनक्लेचर यूज नहीं किया टू हैंडल द USB, बल्कि आपने सिंपल /user/ast/backup/monday एक जो फाइल सिस्टम का जो पाथ है उसको यूज करते हुए हम डिवाइसेस को हैंडल कर सकें, और इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म नेमिंग। ओके, एरर हैंडलिंग। Error handling should be also
by the सिस्टम इटसेल्फ। अब मैं जब कह रहा हूं सिस्टम इटसेल्फ तो थोड़ा सा आपने देखा मैंने रुक के कहा कि सिस्टम इटसेल्फ, बिकॉज हम चाहते ये हैं कि जो एरर हैंडलिंग है वो डीप बरीड हो सिस्टम के अंदर, ये जो सॉफ्टवेयर की जो लेयर्स हैं उसमें बरीड हो। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हार्ड डिस्क, उसकी पोजीशन के ऊपर अगर नहीं जा रहा या हेड के ऊपर कोई डस्ट आ गई है तो मल्टीपल टाइम्स ट्रायल्स होने चाहिए, उसको बार बार रीड करने की कोशिश करें सो डैट कि डस्ट पार्टिकल डेट माइट बी लैंडिंग ऑन टू द हेड वो जो है वो रोटेशन से वो आगे पीछे हो जाए और आप एरर जो है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो हम चाहेंगे कि ये एरर जो है शुड बी हैंडल्ड बाय द लोएस्ट लेवल पे क्या होता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर ही डिवाइस की इस एरर को रिजॉल्व करे। अगर कंट्रोलर डिवाइस की एरर को रिजॉल्व ना कर सके तो फिर उसके ऊपर आए, कंट्रोलर के ऊपर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, वो उसको हैंडल करे। डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो उसके ऊपर फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, और वर्स्ट सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे कि वो आप इंटरेक्टिव यूजर अगर अवेलेबल है उसको आप मैसेज देंगे कि भाई ये सिचुएशन है, बताएं इसको अबॉर्ट करें या कंटिन्यू करें या हम इसको करंट प्रोसेस को एक रीट्राई जो है उसको दी जाए ताकि एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाए। इसको कहते हैं एरर हैंडलिंग। देन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन। दो तरह की ऑप्शंस हो सकती है, एक ब्लॉकिंग और एक नॉन ब्लॉकिंग। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जब किसी डिवाइसेस को हैंडल कर रहे हैं तो उसको एक स्पेशल मैकेनिज्म नहीं चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहते हैं कि यूजर को ऐसा नजर आए कि वो हार्ड डिस्क से रीड कर रहा है या कीबोर्ड से रीड कर रहा है या किसी और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से रीड कर रहे हैं, वट एवर द डिवाइस कुड बी, इसको अपेरेंट भी एक ही नजर आना चाहिए एंड यूजर के लिए। एंड यूजर के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन चाहिए और दैट एब्स्ट्रैक्शन मींस के हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे हम क्या हाइड करना चाह रहे हैं, ब्लॉकिंग और non-blocking. So operating system needs to make IO operation blocking. For example, program block until data arrives on a read. इसको हम कहते हैं कि ये अच्छा, ये मैंने जो एग्जांपल दी ना, ये मैंने दूसरे ब्लॉक की एग्जांपल दे दी। ये ब्लॉकिंग वो है कि प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। और थोड़ा सा इसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जब आप कोई आईओ रिक्वेस्ट यूजर क्रिएट करता है तो दो ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो है वो बेसिकली क्या करता है कि साइमल्टेनियसली आपको रीड राइट फैसिलिटी देता है। तो सिंक्रोनस ब्लॉकिंग वर्सेस एसिंक्रोनस व्हिच इज इंटरप्ट ड्रिवन, ठीक है। एक तो ये है कि आप उस डिवाइस से आप उस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, प्रोग्राम ब्लॉक until data arrives and read because it is easy to write the blocking options, ठीक है। आपने IO जनरेट किया, ड्राइवर ने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की और प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया, और जनाब वो पूरे का पूरा जो डेटा है डिवाइस से रीड करके प्रोसेस के अंदर एक ब्लॉक की फॉर्म के अंदर वो ये दो डिफरेंट ब्लॉक है। वो ब्लॉक जो है ना वो बफर है, वो बफर के अंदर वो डेटा आ गया। वंस द डेटा इज देयर इन द बफर, तो वो जो ब्लॉक्ड प्रोसेस है, यानी कि वो जो ब्लॉक स्टेट के अंदर गया हुआ है, जो कि रुका हुआ है प्रोसेस, वो जो है दोबारा एक्टिवेट होगा और वो डेटा अपने बफर से रीड करना शुरू कर देगा। दूसरा जो तरीका है वो है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है कि आपने डिवाइस को कहा कि आप डेटा रीड करना चाहते हैं, डिवाइस ने डेटा प्रोवाइड किया और आपको इंटरप्ट किया, और जब आपके प्रोसेस को इंटरप्ट किया तो आपने उसके डेटा को उठाया। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। जब हम इसकी थोड़ी सी आगे फर्दर डिटेल में जाएंगे तो मैं इसको और फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इससे जरा कंफ्यूज ना हो। अब ये समझें कि आपके पास ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन या नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद ब खुद अपने अंदर जो है छुपाना है, सो डैट के यूजर को ये नहीं पता होना चाहिए कि इंटरप्ट ड्रिवन आईओ हो रही है या ये ब्लॉकिंग वाले प्रोसेस से आईओ परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है बफरिंग। इसको भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बफरिंग के बारे में इतना कहते हैं कि द डेटा रीड फ्रॉम द डिवाइस इज टू बी बफर्ड टू इंश्योर अवॉइड डेटा लॉस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम बस और नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्पीड। क्या मतलब? मतलब ये कि
دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس ڈیوائس نے آپ کو ڈیٹا دینا ہے وہ تیزی سے ڈیٹا دے رہا ہے. اب اگر دیکھیں تو ڈیوائس جو ہے وہ سی پی یو کے ساتھ کنیکٹڈ کہاں پر ہے؟ وہ کنیکٹڈ ہے سرٹنوی سسٹم بس کے تھرو. میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی جو انٹرپٹ کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتی ہے, یہی کہا تھا نا. لیکن جب ڈیٹا کی ریڈ رائٹ کی بات آئے گی تو آپ نے دیکھا کہ انٹرپٹ کنٹرولر بھی بس کے اوپر لگا ہوا ہے. کون سی بس ہے؟ سسٹم بس ہے. تو جب ڈیٹا ریڈ کرنا ہے سی پی یو نے تو اٹ از ڈیپینڈنگ اپون دی بس اویلیبلٹی آف دا بس. تو میں نے کہا دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیوائس از پٹنگ اپ دا ڈیٹا ویری فاسٹ ویری کوئکلی, بس آپ کو سی پی یو کو نہیں مل پائی, بس انگیج کی ہوئی ہے کسی اور ڈی ایم اے کنٹرولر نے یا کسی اور ڈیوائس نے, تو ایسی صورت میں ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ سی پی یو جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے, ڈیوائس جو ہے بہت سلو ہے, اور سی پی یو کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کیونکہ سی پی یو ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, بس کو بھی انگیج کرتا ہے, لیکن ڈیوائس آہستہ آہستہ ڈیٹا جو ہے وہ سی پی یو کو دینے کے لیے بس کے اوپر ڈال رہی ہے. تو یہ مس میچ ہے دونوں کی اسپیڈ کا. اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بفر جو ہے ایک ٹیمپریری سٹوریج ہے جس میں ڈیوائس ڈیٹا جو ہے وہ بفر میں رکھے گا اور سی پی یو جو ہے وہ بفر سے ڈیٹا پک کرے گا. اس کو بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں we'll talk about it in detail. Next is shared versus dedicated device allocation. یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے یوزر کے لیے, اور یوزر کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ شیئرڈ ریسورس مانگ رہا ہوں یا میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ ریسورس مانگ رہا ہوں. شیئرڈ ریسورس کون سے ہیں؟ آپ کی کون سی ڈیوائس ہے؟ ہارڈ ڈسک. یس, ہارڈ ڈسک از بینگ شیئرڈ بائی many users, many processes simultaneously. اور سی پی یو ایک وقت میں ایک پروسیس کو ملتا ہے. سی پی یو cannot be shared, اور اگر ملٹیپل سی پی یوز ہیں yes that can be shared. اور another example sharing device کی کیا ہو سکتی ہے جس کو کہ آپ شیئر نہیں کرنا چاہیں گے, ڈیڈیکیٹڈ بھی چاہیں گے, وہ ہے سی ڈی روم. آپ چاہیں گے کہ سی ڈی روم ایک وقت میں ایک یوزر کو ایلوکیٹ ہو. یا اس سے بھی اچھی ایگزامپل ہے پرنٹر. اگر پرنٹر جو ہے وہ آپ شیئر کروا دیں گے, نارملی شیئر ہوتا ہے لیکن بڑے ٹرک کے ساتھ شیئر ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ پرنٹر از بینگ شیئرڈ, لیکن ایک پرٹیکولر ٹائم میں جب ایک یوزر کا ڈیٹا پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایکسکلوسیو ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف اسی یوزر کے پرنٹ آؤٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کی پرنٹنگ جو ہے اس نے اسٹارٹ کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں شیئرڈ ورسز ڈیڈیکیٹڈ ڈیوائس ایلوکیشن شوڈ بی ہینڈلڈ بائی دی آئی او سافٹ ویئر ایک جیسے انداز میں. اب ایولیوشن کو تھوڑا سا یہاں پہ ایک سلائیڈ کو ڈالا ہے میں نے آپ کی کنوینئنس کے لیے, تاکہ تھوڑا سا آگے جب ہم جائیں گے سافٹ ویئر کو دیکھنے کے لیے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہوئی تھیں ہارڈ ویئر کے اندر. سو میں نے یہ ایبرپٹلی ایک سلائیڈ اس میں یہاں پہ انسرٹ کی ہے کہ ایولیوشن آف دا آئی او فنکشنز ہوا کیسے. پہلے پروسیسر مین سی پی یو. پروسیسر ڈائریکٹلی کنٹرولز ا پیریفرل ڈیوائسز. اسٹارٹ ہم نے یہاں سے کیا تھا کیونکہ بیچ میں کوئی انٹرپٹ کنٹرولر نہیں تھا اور بہت زیادہ آئی او کنٹرولرز بھی نہیں اویلیبل تھے, تو سی پی یو ڈائریکٹلی ہینڈل کرتا تھا. پھر کیا آیا کہ کنٹرولر آف آئی او ماڈیول از ایڈڈ. آئی او کنٹرولرز آ گئے اور آئی او کنٹرولرز نے ڈیوائس کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا. پھر ایولیوشن کیا آئی کہ سیم کنفیگریشن ایز اسٹیپ نمبر 2 کہ آئی او کنٹرولرز بھی آ گئے, بٹ ناؤ دا انٹرپٹس آر امپلائڈ. بلکہ کیا کیا کہ سی پی یو کو آپ نے کہا کہ ڈو اٹ وٹ ایور یو وانٹ, وین ایور دا ڈیٹا ول بی ریڈی دا سی پی یو ول بی انٹرپٹڈ. سو آپ ایک انٹرپٹ ڈریون آئی او میکینزم جو ہے وہ آپ نے انٹروڈیوس کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ ایولیوشن کیا آئی کہ اچھا جو انٹرپٹ ڈریون تھا نا اس میں جب ڈیٹا اویلیبل ہوتا تھا کہاں پر, کنٹرولر کے بفر میں, تو آپ سی پی یو کو انٹرپٹ کرتے تھے کہ بھی ڈیٹا میرے کنٹرولر کے بفر میں اس کو پک کر میں, تو سی پی یو جو ہے سسٹم بس کے تھرو اس ڈیوائس کے کنٹرولر سے ڈیٹا پک کرتا تھا اور وہ میموری کے اندر پرووائڈ کر دیا کرتا تھا. ٹھیک, لیکن بعد میں آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ سی پی یو کو بھی ہمیں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویئر از مائی کرسر؟ اوکے, یہ رہا.
آپ لے کر آ گئے جناب ڈی ایم اے, ڈائریکٹ میموری ایکسس وداؤٹ انوالونگ سی پی یو. اب جو ایوولوشن یہ ہوا کہ سی پی یو جو ہے وہ کوئی اور اپنا کام کر رہا ہے اور ڈیٹا جو ہے ڈیوائس سے میموری میں وداؤٹ سی پی یو کو انوالو کیے پہنچا رہے ہیں آپ. جب یہ ڈیٹا جو ہے ڈائریکٹلی سی پی یو کو انوالو کیے بغیر میموری میں آ جاتا ہے, تب سی پی یو کو انٹرپٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی ڈیٹا جو ڈیوائس سے آنا تھا وہ میموری میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے. تو دیٹ واز اے بگ ایوولوشن. اس کے بعد کیا ہوا؟ IO module is enhanced to become a separate processor with specialized instruction set and IO. پھر IO module جو ہے نا وہ اتنے زیادہ انہانس ہو گئے کہ ان کے اپنے انسٹرکشن سیٹ سے, اور IO module جو ہیں بجائے سی پی یو کو انٹرپٹ کرنے کے بڑے انٹیلیجنٹلی ڈیوائسز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے لگے. اور فائنلی the IO module has a local memory of its own and is in fact a computer in its own right. یعنی کہ اب آئی او ماڈیول جو ہے اس کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے انٹیلیجنٹ, وہ بذات خود ایک پروسیسر ہے اور اس کی اپنی لوکل میموری ہے. سو بہت سارے کام جو کہ سی پی یو کو کرنے تھے اب وہ انٹیلیجنٹ آئی او کنٹرولرز جو ہیں وہ یہ پرفارم کر رہے ہیں, اور وہ اپنے اس میں اپنے ہارڈ ویئر میں خود سے کمپیوٹر ہیں, ان کی اپنی میموری ہے. اس کا مطلب وہ جو میں نے پچھلی بات کی تھی نا کہ ایرر ہینڈلنگ کو بری آؤٹ کریں ڈیپر انسائڈ کے کنٹرولر لیول پر ہی پرابلم ریزالو ہو جائے. سو آئی تھاٹ کہ آئی او سافٹ ویئر کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا کوئک ریویژن ہم جو ہارڈ ویئر کا اور سافٹ ویئر کا جوائنٹ ایوولوشن ہوا ہے, اس میں کچھ ہارڈ ویئر کے ایوولوشنز ہیں اور کچھ سافٹ ویئرس کے ایوولوشن ہیں. خالی یہ ڈی ایم اے کنٹرولر ہارڈ ویئر ہی نہیں ہے بلکہ obviously اس ڈی ایم اے کنٹرولر کے لیے سافٹ ویئر نے بھی پروویژن پرووائڈ کی ہے. لہٰذا this was an ideal place to put in this particular slide here. Okay. Let's talk about the type of I/O operations. تین طریقے سے آپ I/O operation perform کر سکتے ہیں. Number 1 programmed I/O, Number 2 interrupt driven I/O, اور Number 3 آپ گیس کریں کیا ہے؟ ڈی ایم اے. یس, یہ ایوولوشن والی بات ہے جو میں اب آپ سے کر رہا تھا. سب سے پہلے سی پی یو خود یوز ہو رہا تھا, پھر انٹرپٹ ڈریون آیا, پھر ڈی ایم اے آیا. تو یہ بیسیکلی تین بڑی کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئی. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اسٹوڈینٹس, ایک چیز جو میں اس اسٹیج کے اوپر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بار بار چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں سرٹن پیرائے کے اندر. آپ اس سے کنفیوز نہ ہو. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے انٹرپٹ کی بات کی جب ہم ہارڈ ویئر کی بات کر رہے تھے. اب انٹرپٹ کی بات کریں گے یا جو کر رہے ہیں وہ ہم سافٹ ویئر کے ریفرنس سے کر رہے ہیں. ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں انٹرپٹ کی بات کی جب ہم پروسیس مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے کیونکہ وہ انٹرپٹ پروسیس کو ڈسٹرب کر رہا تھا. ہم نے میموری مینجمنٹ میں انٹرپٹ کی بات کی کیونکہ میموری میں جب انٹرپٹ اکر ہوتا ہے تو وہ ڈفرنٹ سینیریو کے اندر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پیج فالٹ از این انٹرپٹ, سیگمنٹ فالٹ از این انٹرپٹ. تو اس کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دس از این اپرچونٹی کہ ایک جو انٹرپٹ کا میکینزم ہے اس کو ڈفرنٹ آپ یہ سمجھیں رنگ برنگی گلاسز لگا کر ہم اسی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم پروسیس کے اسپیکٹ سے انٹرپٹ کو دیکھتے ہیں تو پروسیس کے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, جب میموری کے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو میموری کے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, اور یہاں پر پریسائزلی ڈیوائس آئی او ڈیوائسز کے اسپیکٹ سے ہم انٹرپٹ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم نے انٹرپٹ کے دو جگہ سے دیکھا. ایک ہم نے ود ریسپیکٹ ٹو پرنسپلز آف آئی او ہارڈ ویئر جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیکچر کے سٹارٹ میں اس کو ڈسکس کیا تھا, اور اب جو ہم ڈسکس کریں گے ود ریفرنس ٹو پرنسپلز آف آئی او سافٹ ویئر. تو اتنی لمبی ساری تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جب پڑھ رہے ہوں گے تو برائے مہربانی اس کو اس ایسپیکٹ سے دیکھتے رہیں بجائے اس کے کہ آپ کنفیوز ہو کے بیٹھ جائیں گے سر نے یہ کیا کیا, انٹرپٹ کو بار بار پڑھائے جا رہے ہیں بار بار پڑھائے جا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئے کانسیپٹ نئی سچویشن اور نئے ریکوائرمنٹ کے مطابق انٹروڈیوس ہوتے ہیں. سو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو یا ایکسپلین اٹ ٹو یو. اوکے, تین طرح کے آئی او آپریشنز ہیں. نمبر 1 پروگرامڈ آئی او. پہلے پروگرامڈ آئی او کی بات کر لیتے ہیں. دا پروسیسر ایشوز این آئی او کمانڈ آن بہاف آف پروسیس ٹو این آئی او ماڈیول. That process then busy waits for the operation to be completed before proceeding further. سمپل سی بات ہے کہ ایک
प्रोसेस है जो आईओ ऑपरेशन कैरी आउट करना चाहता है, तो प्रोसेसर क्या, सीपीयू, उस प्रोसेस के बिहाफ पर उस पर्टिकुलर डिवाइस को इंस्ट्रक्ट करता है। कैसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसके जो कंट्रोलर के रजिस्टर्स के ऊपर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंट्रोलर के जो रजिस्टर्स हैं उनको लोड करते हैं विद द कमांड, और फिर उसके बाद वो वेट करता रहता है कि ये कंट्रोलर जो है उस डेटा उसको प्रोवाइड कर दे। इसको हमने कहा था बिजी वेटिंग भी, कि वो जो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हुआ है, सीपीयू जो है वो वेट कर रहा है, यानी कि वो प्रोसेस वेट कर रहा है, और सीपीयू जो है वो लूप के अंदर चेक कर रहा है कि कब वो डेटा आए बस के ऊपर और मैं रीड आउट करके इस प्रोसेस को सर्विस प्रोवाइड करूं। इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड आईओ। दूसरा है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ क्या है? द प्रोसेसर इश्यूज एन आईओ कमांड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेस, जो काम ऊपर किया था, लेकिन इफ नॉन ब्लॉकिंग प्रोसेसर continues to execute instruction from the process that issued the IO command। यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, आपने कहा ना, अगर आपको याद होगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट हमने थ्रेडिंग पढ़ी थी, ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या किया था, नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स पढ़ी थी। तो उसमें क्या करते हैं कि जनाब आपने इंस्ट्रक्शन तो दे दी कि जनाब ये आईओ परफॉर्म कर दें, और साथ ही जो सीपीयू है वो दूसरे थ्रेड को, प्रोसेसर जो है वो दूसरे थ्रेड को एलोकेट कर दिया। तो वो हम बात कर रहे हैं कि नॉन ब्लॉकिंग की, कि वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा इन द मीनवाइल जो आपका इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं आईओ की, वो आपके ये डेटा रीड आउट कर रहा है। ठीक। दूसरा है इफ ब्लॉकिंग। अगर ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल आपने की है तो इन दैट केस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इज फ्रॉम द ओएस। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस तो हो गया ब्लॉक। जब प्रोसेस ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब है ट्रैप अकर हुआ। जब ट्रैप अकर हुआ तो कंट्रोल कर्नल पे चला गया। जब कर्नल के पास कंट्रोल चला गया तो अब जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन होगी, कर्नल की इंस्ट्रक्शन होगी, विच विल पुट द करंट प्रोसेस इन ए ब्लॉक स्टेट एंड शेड्यूल अनदर प्रोसेस। आपने देखा कि वो कर्नल क्या करता है कि उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद शेड्यूलर को कंट्रोल दे देता है, और वो जो शेड्यूलर है वो या तो कोई कर्नल का प्रोसेस या हायर प्रायोरिटी प्रोसेस या कोई और यूजर का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। और तीसरा आईओ यूजिंग डीएमए। A DMA module controls the exchange of data between the main memory and an IO module. अब CPU is free. After issuing the command, वही वाला सेंटेंस मुझे यहाँ रिपीट करना चाहिए था, कौन सा? ये वाला भाई। The process issues an IO command on behalf of process. वो कमांड तो इशू करेगा ना वो प्रोसेस के, मुझे चाहिए क्या, करना क्या है। उसके बाद जो डीएमए कंट्रोलर जो है वो टेक ओवर करवेगा और दी विल रीड द डेटा फ्रॉम डिवाइस एंड प्रोवाइड इट इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वंस द डेटा इज अवेलेबल इन द मेमोरी, तो फिर ये उस प्रोसेस को हैंड ओवर कर देगा डेटा और प्रोसेस विल रिज्यूम। और अदरवाइज अगर तो आप यूज कर रहे हैं थ्रेड्स तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो शेड्यूलर माइट एग्जीक्यूट सम अदर प्रोसेस। सो दिस आईओ ऑपरेशन इज कैरिड आउट विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू फर्दर। कमांड देने के बाद बिल्कुल टोटली सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो दरमियान वाला है ना, यहाँ पे वही है कि इंटरप्ट देकर देयर इज अ चांस कि अब वो सीपीयू जो है वो डेटा उठाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरप्ट ड्रिवन है ना, डीएमए नहीं है। और ये डेटा उठाने से मुराद ये है कि कंट्रोलर के बफर से डेटा उठाकर कॉपी करेगा। पहले अभी वो हम बफरिंग पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कॉपी करता है और क्या करता है फर्दर। ठीक है, तो वो उस डेटा को बेसिकली एंड यूजर तक पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम्ड आईओ। This programmed IO में this is a process which is a user process, must be running in user space. User wanted to print, आपकी आसानी की एक simple सी example दी आपकी बुक में कि A, B, C, D, E, F, G, H का एक string है that has to be printed on a page. पेज के ऊपर, तो ये पेज किसके पर है? प्रिंटर के पास है। तो बेसिकली ये जो यूजर प्रोसेस है that wanted to print
it into the page. और ये हमने इसको स्टेप 1 में डिसाइड किया कि जनाब हमने ये काम करना है. तो फिर क्या होगा, पहले ये जो स्ट्रिंग है वो कॉपी करेंगे आप कर्नल स्पेस के अंदर. कर्नल स्पेस जो है वो जनाब आपका एक एक कैरेक्टर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम्ड आईओ है ना, तो यहां से डायरेक्ट नहीं जा रहा है ये इसके ऊपर, बल्कि पहले उसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो डेटा जो है यहाँ पे कर्नल के, ये सारा एरिया कर्नल के पास है. तो पहले यहाँ पर हम प्रोग्राम्ड आईओ में कर्नल में कॉपी कर देते हैं जो हमने डिवाइस को देना होता है, और फिर एक टाइटर लूप के जरिए, टाइटर लूप जहां पे सीपीयू जो है ना बिजी वेटिंग, कैरेक्टर प्रिंट हो गया, चलो नेक्स्ट प्रिंट करो, बी प्रिंट हो गया, नेक्स्ट प्रिंट करो, सी प्रिंट हो गया. नहीं, अब मैं जब कहता हूं ना प्रिंट हो गया, इसके पीछे पूरी साइंस है. वेट करें, कीप ऑन बिजी वेटिंग, सीपीयू जो है वो वेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, ये देखने के लिए कि प्रिंट हुआ या नहीं हुआ. ठीक, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है अब 2 कैरेक्टर प्रिंट हो गए हैं, और पॉइंटर जो है वो थर्ड कैरेक्टर के ऊपर है, जो कि अब यहाँ पर प्रिंट होगा थर्ड कैरेक्टर. तो इसकी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम्ड आईओ. स्टेप्स क्या है उसको थोड़ा सा जो मैंने आपको ज़बानी एक्सप्लेन किए थे स्टेप्स, अब यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर मेंशन किए. फर्स्ट द डेटा आर कॉपीड टू द कर्नल, वापस जाएं, दिस डेटा इज कॉपीड इनटू द कर्नल. ठीक होगी बात, ओ सॉरी. उसके बाद देन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंटर्स अ टाइटर लूप आउटपुटिंग अ कैरेक्टर ऑनटू द वन एट अ टाइम ऑन द डिवाइस. ठीक होगी बात. वो वापस चलते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, कर्नल जो है टाइटल लूप के जरिए डेटा जो है वो कॉपी किए जा रहा है उसके ऊपर वन एट अ टाइम. आफ्टर आउटपुटिंग अ कैरेक्टर द सीपीयू कंटिन्यूसली पोज मीन बिजी वेटिंग, चेक किए जा रहा है उसको, उसकी कोई बिट को चेक कर रहा है, रेडी बिट, प्रिंटर कब रेडी होगा टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर. जैसे ही प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंट कर देता है उसका वो एक सिग्नल देता है, और वो सिग्नल एक पिन के ऊपर आता है. पिन का जो सिग्नल है वो लो से हाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल 0 से 1 हो जाता है, और सीपीयू को पता चल जाता है कि प्रिंटर इज रेडी टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर. तो फिर उसके प्रिंटर के बफर में नेक्स्ट कैरेक्टर कॉपी कर देता है और उसे कहता है इसे प्रिंट करो, और साथ ही फिर वो उसी पिन को दोबारा चेक करना शुरू कर देता है वेदर द प्रिंटर इज रेडी टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर और नॉट. दिस बिहेवियर इज ऑफन कॉल्ड पोलिंग और बिजी वेटिंग. ठीक, अच्छा जी, दिस इज एन एग्जांपल. अब यहां पर आप देखें कि पी जो है वो कर्नल का बफर है, और ये वाला बफर जो है वो यूजर का बफर है. आप क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं स्टेप 1 के अंदर यूजर प्रोसेस जो बफर है, डेटा जो है दैट हैज टू बी प्रिंटेड ऑन टू द प्रिंटर, उसको वो कर्नल के बफर में कॉपी करता है और बताता है कि कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करने हैं. बजाय इसके वो खुद कंप्यूट करे, यूजर बता देता है कि भाई 20 कैरेक्टर्स हैं या 1 पेज है, वट उसका काउंट प्रोवाइड कर देता है. उसके बाद ये टाइटल लूप के अंदर लूप ऑन एवरी कैरेक्टर फॉर आई इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू काउंट आई प्लस प्लस वाई प्रिंटर इज रेडी चेक करे जाएगा. अगर प्रिंटर रेडी है तो जनाब प्रिंटर ने इसने करना क्या है, सिर्फ इसको कर्नल के बफर से उठाकर इसको राइट करना है इसके प्रिंटर के ऊपर. ये सॉरी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना. अब आपने यहां से तो कॉपी कर दिया था ना, और कहां पे कि यूजर प्रोसेस से यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में कॉपी कर दिया था. अब कर्नल स्पेस से एक एक करके कैरेक्टर जो है टाइटल लूप व्हेन एवर द प्रिंटर इज रेडी, और जनाब ये यहाँ पर उसको राइट डाउन कर रहा है, उस प्रिंटर के रजिस्टर में लिख रहा है. जब प्रिंटर के रजिस्टर में लिखनेगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा चेक करेगा, अगला कैरेक्टर उठाएगा और फिर चेक करेगा कि आप पिन रेडी हो गई है. रेडी मीन 1 हो गई है वो पिन. जब वो पिन 1 हो गई है अगला कैरेक्टर राइट करेगा, पिन 1 हो गई है अगला कैरेक्टर राइट करेगा, और एंड पे रिटर्न बैक टू द यूजर. ठीक हो गया, आउटपुट 1 कैरेक्टर एट ए टाइम. सो आफ्टर आउटपुटिंग अ कैरेक्टर अ प्रिंटर ऑन प्रिंटर द सीपीयू कंटिन्यूसली पोज द, ये पोलिंग है, यहां पे पोलिंग हो रही है. ठीक है, पोज द प्रिंटर टू सी इफ द रेडी टू एक्सेप्ट अनदर वन. ओके, दिस इज कॉल्ड बिजी वेटिंग, और हमें पता है कि इट इज द वेस्टेज ऑफ द सीपीयू टाइम. Okay, there are certain good and certain bad about it. Programmed I/O good क्या है कि it's very simple idea.
and if the CPU has to do nothing, और like मैंने आपको बताया था embedded systems के अंदर CPU ने एक खास activity और एक खास काम करना होता है, अगर तो भाई ऐसी situation है तो it's a very good idea, बजाय इसके कि CPU उधर वेट कर रहा हो और आप यहाँ पे complicated आप IO mechanism लगाएं, intelligent controller लगाएं और ये सारे cost बढ़ा दें. अगर CPU ने सिर्फ एक ही यूजर को सर्व करना है और सर्टन कोडेड एक्टिविटीज ही करनी है एम्बेडेड सिस्टम में जो कोड हुई हुई है, ऐसी सूरत में इट्स अ गुड आइडिया और हम प्रोग्राम्ड आईओ की तरफ ही जाना पसंद करेंगे. माइक्रोवेव ओवन को अगर इंस्ट्रक्शन देनी है माइक्रोवेव की जो चिप है कंट्रोलर ने, तो उसने कुछ और तो करना नहीं है, उसने खाना पकाने के अलावा उसने बर्तन तो धोने नहीं है, वो डिश वॉशर तो है नहीं, उसने आपके कपड़े भी नहीं धोने, उसने सिर्फ खाना ही पकाना है. तो अगर वो इंस्ट्रक्शन देकर फारिग बैठा हुआ है तो साथ साथ बेहतर है कि वो बिजी वेटिंग पे चेक करता रहे कि स्टेज 1 कंप्लीट हो गई है तो स्टेज 2 पे चला जाए, स्टेज 2 कंप्लीट हो गई है तो स्टेज 3 पे चला जाए, उसको रोटेट करता रहे, उसके रोटेशन की स्पीड को देखता रहे, उसके टेम्परेचर को देखता रहे, उसकी और जो बेशुमार इवेंट्स हैं माइक्रोवेव ओवन के, अगर उसने एम्बेडेड सिस्टम ने उसको हैंडल करना है तो इट्स बेटर कि आप प्रोग्राम्ड आईओ करें. बैड क्या है? अगर सीपीयू एक लग्जरी रिसोर्स है और सीपीयू एक पेंटियम एनवायरनमेंट के अंदर सीपीयू है और प्रोवाइडिंग दी सर्विस टू मैनी प्रोसेसेस या मैनी यूजर, तो फिर ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, फिर दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए बैड चॉइस. नेक्स्ट इज इंटरप्ट ड्रिवन आईओ. ठीक, ओके स्टूडेंट, वंस अगेन ओवर गुड ओल्ड फ्रेंड इंटरप्ट जो है फिर आ गया, लेकिन अब इसको देखिए कि अब हम किस सिनेरियो में इंटरप्ट की बात करते हैं. सपोज प्रिंटर वाली एग्जांपल में अगर आपका प्रिंटर इज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 100 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, एक सेकंड में 100 कैरेक्टर, बहुत फास्ट है ना? नहीं, इतना भी फास्ट नहीं है. अगर कैलकुलेट करें तो एक कैरेक्टर जो है वो 10 मिली सेकेंड के अंदर प्रिंट कर रहा है. 10 मिली सेकेंड यानी कि 10 to the power 3 1000 मिली सेकेंड है. 1000 मिली सेकेंड्स के अंदर अगर आप माइक्रो सेकेंड्स देखें तो एक मिली सेकेंड के अंदर 1000 माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, और अगर नैनो सेकेंड की बात करें तो 1 मिलियन नैनो सेकेंड जो हैं वो 1 मिली सेकेंड के अंदर होंगे. तो अगर आपका मेमोरी की रीड राइट जो है वो 10 नैनो सेकेंड्स में होती है तो इस दौरान में तो सीपीयू कैन डू वंडर्स. 1 मिली सेकेंड में सीपीयू बहुत सारे काम कर सकता है. सो ऐसी सूरत में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कर सकता है सीपीयू. इट कैन ब्लॉक अ प्रोसेस विच रिक्वेस्टेड एन आईओ एंड शेड्यूल अनदर प्रोसेस. ये जो 10 मिली सेकेंड्स हैं इसमें बड़ी आसानी से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी हो सकती है और एक पूरे का पूरा नया प्रोसेस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपनी एग्जीक्यूट कर सकता है. ओके, सो रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोसेस व्हेन आईओ इज डन. अब जब आईओ कंप्लीट होगी, कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, तो फिर प्रिंटर एक इंटरप्ट भेजे सीपीयू को. सीपीयू ने उस प्रोसेस को जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको सेव करवे और फिर नया कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड कर दे. Yet it is very useful to utilize के आप CPU को बजाय busy waiting करने के 10 millisecond के लिए कोई और काम करने दें. So the device will keep interrupting and printing until the end of the string. ठीक होगी बात. सो री-इनिशिएट कॉलिंग प्रोसेस वंस द प्रिंटिंग इज कंप्लीटेड. तो वो वाला प्रोसेस जिसने कहा था प्रिंट करो उसको तो सीपीयू ब्लॉक कर देगा और बार बार इंटरप्ट के जरिए वो उसको नया नया कैरेक्टर, क्योंकि क्यों प्रोसेस ब्लॉक है तो प्रिंट कहां से कर रहा है? यस, हमने अभी पिछली ड्राइंग के अंदर देखा था, स्लाइड में देखा था कि यूजर प्रोसेस से कर्नल प्रोसेस के अंदर हमने स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया था. तो अभी प्रोग्राम्ड आईओ में भी आपका जो डेटा है वो सीपीयू ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ने काबू कर लिया है, ताकि वहीं से वो डेटा जो है वो डिवाइस को दे रहा है और यूजर प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया है उसमें अंदर. ठीक, इस तरीके से. सो हमने देखा कि इट विल कीप ऑन इंटरप्टिंग द सीपीयू फॉर एवरी कैरेक्टर. ये थोड़ी सी बैड अबाउट इट. दिस इज द सैंपल. और यहाँ पे अगर हम देखें पार्ट ए में द कोड एग्जीक्यूटेड एट द टाइम द प्रिंट सिस्टम कॉल इज मेड, ये आपका है जहां पे आपने कहा कि वही डेटा दे दिया. कहां से? यूजर प्रोसेस से कॉपी किया कर्नल स्पेस के अंदर. उसके बाद आपने किया एनेबल इंटरप्ट. इंटरप्ट को आपने किया, उसके बाद व्हाइल प्रिंटर इज रेडी
जब तक ये रेडी नहीं, करेक्टर बाय करेक्टर करके डेटा जो है वो उसको प्रोवाइड करते रहे। जब ये सारे का सारा जो काम जो है वाइल ये वाला एक्चुअली जो है जब तक ये जो टेस्ट कर रहा है और इसके बाद ये प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद इंटरप्ट एनेबल, क्योंकि बार बार इंटरप्ट करना है ना उसने, और करेक्टर प्रिंट उसको देने के बाद, प्रिंटर को करेक्टर देने के बाद जब तक वो रेडी नहीं होता शेड्यूलर का कंट्रोल दे देता है, ताकि भाई जो काम करना है करो, जाके शेड्यूलर का काम, अपना टाइम वेस्ट ना करो यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे क्या है, बी में इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर फॉर द प्रिंटर। इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर कहते हैं कि जब तक काउंट जीरो ना हो जाए, यहाँ पे काउंट ने बताया था कि भाई 10 कैरेक्टर प्रिंट करने थे, ठीक है ना, और ये कहता है कि क्या काउंट जीरो हो गया, उसके लिए अनब्लॉक यूजर प्रोसेस, ठीक, अगर काउंट जीरो हो जाए तो यूजर प्रोसेस को जगा दो, अदरवाइज एक एक करके कैरेक्टर जो है प्रिंटर के बफर में रखते जाएं, काउंटर को माइनस करते जाएं और कैरेक्टर आगे बढ़ते जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओके, ये आई जे से आगे चले जाओ और काउंटर को डिक्रीमेंट करते जाओ। जब 10 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएं तो उसके बाद एक्नॉलेज इंटरप्ट, ओके, और रिटर्न द कंट्रोल फ्रॉम द इंटरप्ट टू द कालिंग प्रोसेस। ठीक होगी बात। तो ये है आपका सैंपल फॉर इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। नेक्स्ट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पॉइंट नंबर 3, पहला प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, तीसरा डीएमए। We use DMA controller to send the character to the printer instead of using the CPU. हम वहां पर CPU को यूज कर रहे हैं टू सेंड द कैरेक्टर, कॉपी कर रहा है CPU जो है कंट्रोलर के रजिस्टर में, प्रिंटर का जो कंट्रोलर है उसके रजिस्टर में एक एक कैरेक्टर डाल रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्रिंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर डीएमए कंट्रोलर ये काम करेगा, सीपीयू ये काम नहीं करेगा। सो डीएमए इज ए प्रोग्राम्ड आईओ। पहले प्रोग्राम्ड आईओ में सीपीयू काम कर रहा था, अब प्रोग्राम्ड आईओ है बट हैंडल्ड नॉट बाय सीपीयू, बाय द डीएमए कंट्रोलर अब ये काम कर रहा है। And all the work instead of the main CPU. So CPU is only interrupted when the buffer is printed. पहले हर कैरेक्टर के बाद CPU को इंटरप्ट कर रहे थे, अब जब सारे का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो डीएमए कंट्रोलर बताएगा CPU को जो मुझे असाइनमेंट दी गई थी फाइल प्रिंट करने की, और ये कहां से प्रिंट कर रहा है, उसने ये डेटा मेमोरी में सेव किया हुआ था। डीएमए कंट्रोलर मैंने आपको बताया था मेमोरी से डेटा उठाकर डिवाइस को प्रोवाइड करता है, या डिवाइस से डेटा उठाकर मेमोरी के अंदर राइट डाउन करता है। तो वो जो कर्नल स्पेस के अंदर आपने कॉपी करेंगे कैरेक्टर, वो एक मेमोरी होगी बेसिकली, वहां से सारे का सारा डेटा जब डिवाइस पे प्रिंट हो जाएगा तो डीएमए कंट्रोलर विल इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू द सीपीयू दैट द वर्क हैज सक्सेसफुली बीन कैरिड आउट। सो डीएमए इज वर्थ इट। कब इसका फायदा है डीएमए का, आपको याद होगा पिछली मैंने क्विज में सवाल आपसे क्विज किया था कि डीएमए का फायदा कब है और जवाब भी दिया था। आई रिपीटिंग इट हियर कि डीएमए कंट्रोलर कैन ड्राइव द डिवाइस एज फास्ट एज द सीपीयू कुड ड्राइव इट, देन इट इज यूजफुल। और अगर डीएमए बहुत स्लो काम कर रहा है तो बेहतर है कि सीपीयू ये काम जो है वो खुद ही करवे अपना, ठीक। अगर सीपीयू काम जो है फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कर सकता है तो फिर डीएमए कंट्रोलर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसी सूरत में इन्वॉल्व करें जब डीएमए कंट्रोलर एक एफिशिएंट डीएमए कंट्रोलर हो और वो एफिशिएंटली काम को डिस्पोज ऑफ कर रहा हो। और सेकंड, इफ देयर इज एनफ डेटा टू मेक इट विदाउट वर्थवाइल, यानी कि अगर तो डेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ऐसी सूरत में डीएमए के आपको फायदा है और आप फिर ऐसी सूरत में डीएमए को यूज कर सकते हैं। और अगर चंद एक कैरेक्टर हैं तो फिर सीपीयू जो है वो उसको फास्ट हैंडल कर सकता है, डायरेक्ट हैंडल कर सकता है, तो उसको डायरेक्ट हैंडल करवे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू आईओ ऑपरेशन की, ठीक। और हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने डीएमए की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि अगर तो एम्बेडेड सिस्टम आपके पास है और सीपीयू ने कुछ और नहीं करना तो फिर डीएमए की जरूरत नहीं है, सीपीयू को डायरेक्ट खुद ही यूज करवे, ठीक। और उस वक्त में आपको डीएमए की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जब हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको बताया कि डीएमए कब वर्थवाइल है, ओके। और ये बात मैंने आपको शुरू में बताई कि उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका जवाब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है आपसे। दिस इज द एग्जाम्पल।
یہاں پر A کے اندر the code executed when the print system call is made. print system call نے کیا کرنا ہے کہ یوزر بفر سے کرنل بفر میں چلا جانا ہے, اور کرنل بفر میں جب آپ copy the data from user to the kernel space, پھر اس کے بعد آپ ایک اسائنمنٹ دے دیں ڈی ایم اے کنٹرولر کو کہ کیری آؤٹ دس ٹاسک. آفٹر کمپلیٹنگ دیٹ پرٹیکولر ٹاسک اٹ ول جسٹ اسائننگ دا ٹاسک, ناٹ کمپلیٹنگ. یہ اس کو ٹاسک اسائن کرنے کے بعد شیڈولر کو کنٹرول دے دیتا ہے کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اوکے, اس کے بعد یہ کیا ہے, یہ جو بی پارٹ ہے انٹرپٹ سروس پروسیجر جو ڈی ایم اے یوز کرتا ہے, پہلے وہ اکنالج کرتا ہے کہ ہاں مجھے اسائنمنٹ مل گئی ہے, پھر یہ جناب کنٹرولر انڈر ٹیک دی ٹاسک ختم کرنے کے بعد جناب یہ ان بلاک کرتا ہے اس پروسیس کو جس پروسیس کو بلاک کیا تھا فار پرووائڈنگ دس سروس, اور اس کے بعد جناب ریٹرن فرام دی انٹرپٹ از بیک ٹو دا شیڈولر کو. انٹرپٹ ریٹرن جب آپ کریں گے تو کال یہاں سے ہوا تھا, جہاں سے کال ہوا تھا وہیں پر کنٹرول جو ہے will go back to that particular device. Okay, next is IO software layers, and I will quickly go through it. I may not be able to complete this complete topic, but let's discuss it quite a few, and then I will continue it in the next lecture. IO software layers جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے نیچے ہم نے کہا ہارڈ ویئر ہے. اوکے, ہارڈ ویئر کے اوپر ہے انٹرپٹ ہینڈلرز ہیں, اس کے اوپر ڈیوائس ڈرائیور ہے, اس کے اوپر ڈیوائس انڈیپینڈنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے, اور اس کے بعد یوزر لیول آئیو سافٹ ویئر ہے. ہم اس کو یہاں سے یہاں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم نے آئیو پرنسپلز آف آئیو جو ہیں مینجمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھا, پھر ہم نے سافٹ ویئر جو ہے اس کے حساب سے ہم نے بات کی کہ کیسے اس کو آرگنائز ہونا چاہیے, کیسے آپریشن پرفارم ہونا چاہیے. اب ہم آئیو سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں کہ ڈیپ بری کیسے کریں. یہ ساری کی ساری ایبسٹریکشنز ہیں, دیز آر دی ایبسٹریکشنز. یہ بالکل بیریڈ ہے, آپ کو ڈائریکٹ ہارڈ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت نالج چاہیے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ پتہ ہونی چاہیے کتنے رجسٹرز ہیں, کیا کمپلیکسٹی ہے, کیسے کمانڈ دینی ہے, لیکن یہ آپ کی ہیڈک نہیں ہے. اس ڈیوائس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ کام انٹرپٹ ہینڈلر کا ہے. کمانڈز کیسے دینی ہے یہ سارے کا سارا کام ڈیوائس ڈرائیور کا ہے. ڈیوائس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سارے کا سارا کام ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر کا ہے. اور یوزر کا کام صرف اور صرف ریکویسٹ کرنا ہے کہ میری یہ فائل پرنٹ کر دو اس ڈیوائس کے اوپر. That's it. Okay. So we need to discuss the interrupt handler, device driver, device independent operating system software, and user level IO software. Okay. So let's start with the interrupt handler. نیچے سے اب دیکھیں پھر ہم انٹرپٹ ہینڈلر کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن this time ہمارا جو انٹرپٹ ہینڈلر ہے with reference to IO software layer کے حوالے سے ہے. The idea behind it, the driver starting the IO blocks until the interrupt happens when IO finishes. تھوڑا واپس جاتے ہیں. یہ ڈیوائس ڈرائیور جو ہے یہ بیسیکلی اسپیشلسٹ ہے کسی بھی ڈیوائس کے مزاج کو, انسٹرکشنز کو, اور اس کے پرفارمنس اور آپریشن کا جو چیمپئن ہے وہ ڈیوائس ڈرائیور ہے. ڈیوائس ڈرائیور بلاک ہو جاتا ہے مینس کہ ڈیوائس ڈرائیور جو ہے اس کو اس ڈیوائس کی تمام رمزوں کو سمجھتے ہوئے اس کو انسٹرکشن دے دیتا ہے اور خود پھر وہ بلاک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس سے اوپر والا جو ہے ان کی وری نہیں ہے یہاں پر. اوکے, سو ڈرائیور اسٹارٹنگ دا آئیو انٹرپٹ ہینڈلر کے تھرو blocks until the interrupt happens when the IO is finished. Handler process the interrupt. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد wakes up the driver when the process is finished. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ ڈرائیور جو ہے اوپر الٹیمیٹلی ڈرائیور جو ہے وہ اس کو میسج دے گا اور پھر یہ جناب یوزر لیول کا جو پروسیس ہے اس کو ان بلاک کرے گا. اوکے, wakes up the driver when the process is finished. یہ interrupt handler کرتا ہے. and drivers are kernel processes with their own. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیوائس ڈرائیورز جو ہیں بیسیکلی پرووائڈیڈ بائی دی مینوفیکچرر. جس نے ڈیوائس بنائی ہے وہ ڈیوائس ڈرائیور بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور اس ڈیوائس ڈرائیور کو ہم آپریٹنگ سسٹم میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. بائنریز ہم دوبارہ ریکمپائل کر لیتے ہیں اس ڈرائیور کو ساتھ ملا کے, یا دیر آر سم ادر ویز جس میں کہ وہ یوزر اسپیس
स्पेस में भी ड्राइवर, सम ड्राइवर्स जो हैं वो यूजर स्पेस के अंदर भी एग्जीक्यूट होते हैं. सो वंस द ड्राइवर्स आर पार्ट ऑफ द कर्नल, देन दे हैव देयर ओन स्टैक, दे हैव देयर ओन प्रोग्राम काउंटर्स एंड दे हैव देयर ओन स्टेट्स. ओके, interrupt processing details. Let's quickly go through it. First of all, save the registers if not already saved by the interrupt hardware. ये काम interrupt handler कर रहा है. Okay? उसके बाद set up a context for the interrupt service procedure. अब बताएं context का क्या मतलब है यहाँ पर. किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं. इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने एग्जीक्यूट होना है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या पे हुआ यहाँ पर? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, टीएलबी, कैश, वो कॉन्टेक्स्ट है हमारा. उसको, ताकि वो जो कुछ उसमें मौजूद है वो आप एक्सीडेंटली या अनवांटेड भी आप उसको रेफर ना करें. सेट अप अ स्टैक फॉर द इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर. अब इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर ने अपना काम करना है, उसके लिए भी आपको एक स्टैक को सेटअप करना है. ये इंटरप्ट हैंडलर उस स्टैक को इनिशियलाइज करके देता है. एक्नॉलेज द इंटरप्ट कंट्रोलर. If there is no centralized interrupt controller, re-enable interrupts. Means कि once the instructions are taken over, means interrupt handler ने instructions दे दी हैं, device को instructions pass on कर दी हैं, तो फिर वो क्या करेगा कि वो interrupt को enable कर देगा. अगर तो interrupt controller बीच में है तो interrupt controller को करेगा, और फिर इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट को एनेबल करेगा ताकि कोई फर्दर डिवाइस का जब इंटरप्ट आए तो वो सीपीयू उसकी हैंडल करे और उसकी असाइनमेंट जो है वो इंटरप्ट कंट्रोलर को दी जाए. बट इफ देयर इज नो अदर इंटरप्ट कंट्रोलर, ऐसी सूरत में द इंटरप्ट शुड बी मेड अवेलेबल. आपको इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड करना है, और ये इंटरप्ट सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा? ये इंटरप्ट हैंडलर प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज कॉपी द रजिस्टर्स फ्रॉम वेयर they were saved to the process table. ठीक है, प्रोसेस टेबल के अंदर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी जो उसके अंदर सेव हुई हैं वो उसको वापस प्रोवाइड करेगा, उसको कॉपी करेगा रजिस्टर्स को. कॉपी द रजिस्टर. कौन कौन से रजिस्टर? प्रोग्राम काउंटर, पीएसडब्ल्यू, स्टैक पॉइंटर, ये सारे के सारे प्रोसेस टेबल में सेव होते हैं. ठीक है, हम इसको पढ़ चुके हैं, अब हम इसको जस्ट रिव्यू कर रहे हैं. ओके, रन द इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर. इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर ने अब सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इंटरप्ट हैंडलर जो है इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराएगा. एंड चूज विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट. अब जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेस की इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है बजाते खुद वो एक और प्रोसेस बन जाएगा. उस प्रोसेस ने सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन देयर इज ए चांस कि उससे भी ज्यादा हायर प्रायोरिटी का कोई और प्रोसेस मौजूद हो. लिहाजा जो शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि अब जो सीपीयू है वो किसको असाइन किया जाए, क्या इस इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर वाले प्रोसेस को असाइन करें या किसी और को असाइन करें. जिस किसी को भी उसने असाइन करना है उसका एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कॉन्टेक्स्ट जो है दैट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके मुताबिक उसको प्रिपेयर करेंगे. देन लोड द न्यू प्रोसेस रजिस्टर्स because it has to be executed and then start the new process. So these are the steps. अब ये वो steps हैं जो मिलते जुलते भी हैं और different भी हैं. जो हमने second chapter में interrupt handling के steps देखे थे ये उससे काफी हद तक, क्योंकि sequence तो almost वही है, लेकिन explain करने का तरीका थोड़ा सा जो है reference to the context slightly different है. ओके, तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप देखेंगे किस रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस रेफरेंस से आपने इसको रिप्लाई बैक करना है. Okay, next is device driver. I think we should stop here, and we would like to discuss the device driver inshallah in the next lecture. So till then हम यहाँ पर अपने सबक को, अपने लेसन को स्टॉप करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे डिवाइस ड्राइवर से. टिल देन खुदा हाफिज, अज़ान के बाद.